what will Mahrez scores, boys, sir! Unbelievable finish on that half volley from Mahrez, bhai, oh bhai, banger. What a finish from Riyad Mahrez, bhai. मतलब half volley का बाप होता है ना. Look at that. He calmly just plays that. Nobody was paying attention to the positioning of Riyad Mahrez. Everybody thought that he's not a threat, but look at him arriving from far out and look at that touch. Absolutely wonderful game from Manchester City. They didn't rush the game. They weren't overcommitted. They didn't look panicked or something like that. They weren't forcing themselves to kill the game. They were composed. They knew that they are the better team. They knew that they have got the game in control. They knew that they are technically better in terms of every single position in this from this Manchester United team. And they knew if they'll keep their head in the game, they will get a goal, and they have got one. But then again, when you look at the game in terms of scoring wise, obviously Cristiano's presence was missing over there. But what happened? Oh man! Oh man! Oh man! Oh bhai sahab! Oh bhai sahab! Either Man United have made it so easy for City to play like this, or City are just next level, bhai. City's game plan is smoother than Amul butter. बात बोल दी है भाई आपने आयुष सिंह. लेवल ही मेरा एटीट्यूड ही अलग होता है. I mean like, oh भाई साहब, Mahrez has to finish this. Mahrez scores, yes. Holy shit, this is the best level of football that they have shown to us. But that's gonna be an offside, and that's an offside call. But come on, man, that was a brilliant move. Wait. Now is that an offside? That will be a goal. Goal hai. That is a goal. That's a goal. Offside. It's on. That's a goal. तो OG यूनाइटेड फैंस हैप्पी हैं रोनाल्डो को ड्रॉप होने से. ओ भाई साहब, आई जस्ट वांट टू नो कि कितनी प्रतिशत जनता यहाँ पे कह रही है कि विदाउट रोनाल्डो हमारी टीम का प्रोग्रेशन थोड़ा बेहतर होता है. ऑल्दो वी नीड हिम फॉर गोल स्कोरिंग, बट देन अगेन द थिंग वी डू विदाउट क्रिस्टियानो इन द टीम इज better. If that can be answered, maybe we can find out about the way in which Cristiano can be used in a better way. In terms of progression, I added that. Better in terms of progression, in terms of control. Ronnie के around नहीं खेलती United, only Bruno do such. Ronnie also doesn't need pace as his positioning is amazing. Only he is lacking in finishing these days. सुशांत भाई ये भी बात सही है, but then you feel that the team is kind of in pressure to perform, pressure to deliver. You can feel कि both the fullbacks are wanting to deliver those crosses, but they are not able to do that. That's another thing. But yeah, Bruno के ऊपर एक natural pressure है to, if he's there, if he's a creator, he has to feed Ronaldo over there. But then again, कहीं ना कहीं psychologically भी this is lurking in the brain of the players over there कि Cristiano is there up top, we have to provide him because he will save us, he will score the goals. So not openly, but even back of the mind, this keeps on hitting on them. But since he's not there on the pitch right now, they're not even thinking about this. They're thinking, what should I do next? And they are making decisions much more quicker and better, right? Ziba, अगर रोनाल्डो रहता है तो the role of player is to find Ronaldo. If not, they think open. Exactly, नवीन भाई, यही पॉइंट है जिस पे मैं बेस करना चाहता था अपनी रिव्यू को. When Ronaldo is there, तो everyone wants to find Ronaldo with the ball. How do I think about this statement? नहीं, मतलब देखो, दो पहलू हैं. पहला पहलू है सिक्के का, when he is there, people want to find him because he is a world class striker and he will score the goals, but they are not able to find him. There is an inability from the United players to find Ronaldo in those positions because they are playing bad as a team. And एक दूसरा पहलू है जहां पे they don't have Cristiano and they don't even think about this. They try to play their game. They're not officiating on providing those balls to Cristiano up top to score the goals, and they work harder as a team. You know, how can we see him getting used in that area to the fullest? It's not bad to see Cristiano being benched in a few games because obviously at 37 you cannot expect him to start in every single game, mere bhai. What can be said is कि maybe
in a game where you need control, where a team plays mid-dominated football, maybe you can rest him in the half and you can have him in the second half. That's how you can conserve and get the best out of him. And in games जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं, you will have the possession, you will have the control of the game, you can, punch the opponents. Let's go for that. Everybody knew about the level of Manchester City, and now they have shown to the world that, वैसे पता है क्या, let me say this, and I would relatively be rude when I say this. Manchester City have already given out a statement win even before this game. I would not say this is a very big statement win for Manchester United, because I do not think Manchester United to be a world-class team. They have proven, City have in the previous results already proven that they are a better team in world football, and I base that on the previous game, not on this one. The City fans लास्ट के 5 मिनट में मैच नहीं देखा थे, हाथ पे ऐसे पीछे खड़े थे, कूद रहे थे, because they believed in the team, they saw the domination, and ये इसको बीट नहीं कर सकते आप. Pep Guardiola is playing a different brand of football at Manchester City, and you, if you're not watching Pep Guardiola's Manchester City, you're not enjoying yourself by it. तो ऑल राइट भाई लोग, कैसे हो सब लोग? यूनाइटेड फैंस, हाउ आर यू? हाउ डिड यू गाइस स्लीप? यार ये बताओ मुझे. कल मैंने मैच देखा, मैच देखने के बाद से यार वही चीज़ सुन के, वही चीज़ बोल के, आई थॉट देयर इज नो पॉइंट इन शूटिंग अ वीडियो. मैं सोचा सोते हैं, सुबह फ्रेश माइंड से उठ के वीडियो शूट करेंगे, एंड देन आई ट्राई टू टॉक टू यू गाइस कि क्या हुआ, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हुई. बहुत खराब गेम था. ऑब्वियसली सबको पता है सिटी इज़ अ क्लास अपार्ट टीम. यस, एक गल्फिंग क्लास है जो कि एविडेंट था सेकेंड हाफ में, फर्स्ट हाफ में नहीं. यस, आई एम गोना से दिस, फर्स्ट हाफ में इक्वली गुड मैनचेस्टर यूनाइटेड अप देयर. एक डिफरेंट चेंज इन फॉर्मेशन, एक डिफरेंट सिस्टम के साथ यूनाइटेड कम्स अप एंड टोज टू टो जाती है यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी के साथ. एंड वी थॉट कि नहीं, गेम में कुछ मजा आने वाला है. सेकेंड हाफ में ब्लिप खत्म. भाई क्या हुआ? क्या सूंघ के आ गए तुम वहाँ पे ड्रेसिंग रूम में, या मोजे में व्हाइटनर डाल के सूंघ रहे थे क्या? आई डू नॉट नो व्हाट द हेल players had a talk about in the half time pep talk, and second half में आने के बाद से, और उधर पेप ने क्या सुंघा दिया भाई सिटी वालों को, because even City in the first half didn't look like कि they're having a good time. United were running, United were causing all sorts of trouble for them. Second half में सब कुछ बदल गया. and यहाँ पे वीडियो में मैं बात करने वाला आप लोगों से what did I think had happened in the second half, and साथ ही साथ बार्सिलोना के मैच के बारे में भी कि एल्चे ने उनको कैसे इतने देर तक स्टॉप किया, बिकॉज जैसे कि मैंने कहा था कि एल्चे वाला गेम ईजी नहीं होगा. एल्चे ऑल्सो गिव अ वेरी गुड कॉम्पिटिशन टू बार्सा. उनके टैक्टिक्स ऑलमोस्ट टू दी परफेक्शन काम कर रहे थे, बट देन वहाँ पे बार्सा गॉट लकी बिकॉज वी प्लेड बेटर, वी क्रिएटेड मच मोर चांसेस एंड वी हैड टू विन दैट गेम, एंड सो वी डिड वी. बाकी उसके बाद थोड़ा सा यूवेंटस के बारे में, मिलान के बारे में, लास्ट नाइट दे वन अगेंस्ट नापोली, एंड देन आर्सेनल के बारे में हम रैप अप करेंगे टुवर्ड्स टेकिंग अ लुक एट दी टेबल्स फ्रॉम ईच ऑफ दीज teams. Okay, so before we begin, let me tell you that this video is sponsored by OneFootball application. It's the best application, and I recommend you guys to download that application and use it on your daily basis, because if you want to stay updated and in touch with whatever the hell is happening in world football, OneFootball application is the place to go to, because you'll be updated about the upcoming fixtures, the live team sheet as well, the stats are detailed, and you will get the live commentary as well if you are not able to watch the game. The articles over there are very much detailed for you to read about your team. So what are you waiting for? The application is free. You can download it by scanning this QR code right over here, or you can go down into my description and download OneFootball application from over there. Now let me take you to the screen and show you कि मुझे क्या लगता है यूनाइटेड ने खेला कैसा यार. ठीक है, तो तुम जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हो, ये है उनका लाइनअप जिसमें दे वेंट. ठीक है, इट लुक लाइक कि देखो एलांगा सेंट्रल आ रहे थे, सांचो को वाइट, पॉगबा को लेफ्ट हैंड साइड पे दिया गया था, बट मेरे लुक से ऑन पेपर इट वॉज लाइक दिस, बट वॉट हैपेंड इन द फर्स्ट हाफ अलोन. फर्स्ट हाफ में इट वॉज समथिंग लाइक दिस. एक 4-4-2 का एक फॉर्मेशन लग रहा था व्हेनेवर दे वर अटैकिंग, एंड United kind of played with two false nine, Bruno and Pogba, and it was unbelievable for me to think that Pogba is playing as the furthest man forward. And kind of this was clicking, kind of this was working out in the first half. They were running, they were chasing the ball, they were making the tackles, they scored a brilliant goal. एंड गलती किसकी वजह से वो गोल पड़ा? अगेन इफ यू टॉक अबाउट कि 5 मिनट पे ही केविन डे ब्रूने ने वो गोल मार दिया. वी विल टेक अ लुक एट व्हाट हैपेंड इन दैट गोल एज वेल. बट अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड इन द फर्स्ट हाफ, थोड़ा सा जिस हिसाब का यूनाइटेड फर्स्ट हाफ में खेली थी, इट फेल्ट लाइक कि इट कुड बी एन इवन गेम. एक छोटी सी 2-1 की विन हो सकती है सिटी के लिए. सिटी स्टिल वर द बेटर साइड ऑब्वियसली. ठीक है, लेट्स नॉट से कि यहाँ पे यूनाइटेड उस डिस्प्ले से जीत चुकी होती. एक बहुत ही गल्फिंग क्लास आपको सेकेंड हाफ में दिखा. सो बेसिकली दे वर सिटिंग अप लाइक दिस. पॉल पॉगबा एक फॉल्स नाइन के रोल में ही वॉज ड्रॉपिंग इन, ट्राइंग टू गेट द बॉल एंड ट्राई to feed Sancho when he was running, and goal भी वैसे ही पड़ा.
Sancho made that run inside and Pogba on a counter, on a transition, on a shift, क्योंकि सिटी की पूरी टीम चढ़ी हुई थी ऊपर, दे वर वांटिंग एन अटैक एंड दे लॉस्ट अ बॉल, एंड वहाँ पे पॉग्बा फेड सांचो इन बिटवीन द लाइंस एंड सांचो ने एक बहुत अच्छी फिनिश की. सो यार व्हाट हैपेंड इन द सेकंड हाफ, प्लेयर्स के हेड ड्रॉप हुए बिल्कुल. रैग्निक क्या बोलता है, रैग्निक सेड कि सेकेंड हाफ में वी कुडंट डू द थिंग्स दैट वी आर सपोज टू डू ऑब्वियसली, और वो थर्ड गोल ने सब कुछ किल कर दिया. सो भाई मेरा कमेंट ये है, रॉय कीन को हमने खेलते देखा ऑब्वियसली उस लेजेंडरी मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम में. ही 14 डर्बीज प्लेड, 0 लॉसेस. ठीक है, वो टाइम मैनचेस्टर सिटी का सही टाइम नहीं था, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर द बेस्ट क्लब अराउंड, बट वेयर वॉज द कैरेक्टर, where was the effort, where was the focus, where was the grit in the pitch. भाई काफ़ी सारे लोगों ने ये बात कही है, इवन स्कॉट मैकटोमिने ने बात बोली पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कि हम वी ऑलमोस्ट गेव अप एंड इट इज डिसअपॉइंटिंग इफ पीपल थिंक दैट, एंड यस यू फकिंग गेव अप, यू weren't रनिंग, you weren't going for the ball, you weren't challenging for the ball because it looks like a team जो कि यहाँ पे फुटबॉल खेलने नहीं आई है. एंड सिटी के लिए मेरे भाई, सिटी मेड इट सो इजी. तुमको पता है सिटी डिडंट इवन प्ले दैट गुड फुटबॉल, मतलब उससे मेरा मतलब है कि उनको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी. Manchester United didn't make it tough for Manchester City to play this game because they were playing at 30-40% of their efficiencies. Fans cheering every pass of City because they're enjoying it. They're enjoying it. They're loving this because this is beautiful football. Bhai. Pep Guardiola has instilled this sense of supremacy in the team. They're not even looking at the game. They have turned their back around the pitch and they're just rocking. They're celebrating it. They are so far away and over the clouds that they don't even need to look at the game because they know that they are the champions and they know that they will be winning the title league. And look at that. That image is legendary, bhai. Pep Guardiola over there with the crowd of the the crowd of the Etihad behind him, rocking and enjoying this. लास्ट के 15 मिनट का अगर पोजीशन स्टार्ट आप देखोगे तो इट इज 92% सिटी एंड 8% मैनचेस्टर यूनाइटेड. भाई साहब होल यूनाइटेड की टीम ने लास्ट के 15 मिनट में 16 पासेस किए हैं, 1 फ्रॉम किक ऑफ, एंड रॉड्री ने अकेले 17 पास किए हैं. सो देखो स्टार्ट्स कंपेयर करोगे इट विल अपीयर वेरी वेरी रूड, बट यूनाइटेड इज द टीम जिसने सिटी के अगेंस्ट 24 शॉट्स फेस किए हैं, 24 शॉट्स. एंड आई थिंक दिस इज फॉर द फर्स्ट और सेकंड टाइम इन द हिस्ट्री ओनली कि सेकंड हाफ में अलोन मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपनी टीम के अगेंस्ट 10 शॉट्स फेस किए हैं. सो every stats tells you about the difference in the class of these teams, but when you are in a derby, don't you have to go that extra mile, don't you have to make the things hard for the opposition team. Attitude of Bruno Fernandes, ये बात मैंने लाइव स्ट्रीम में भी कही थी, every single ball loss, every time possession loss, या एक इंसिडेंट जो उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ, एक रेफरी का डिसीजन जो कि थोड़ा सा weird चला गया, he is down bashing his hands कि तेरी माँ की आँख क्या हो रहा है, what the hell, things aren't going my favor. It shows where is your head at. एंड ये आज नहीं, ये बात मैं पिछले 5, 6, 7 मैचेस से कह रहा हूँ, वेन एवर दिस इज हैपनिंग विद ब्रूनो. एंड पता है क्या ये गलत क्यों है? बीइंग अ फुटबॉलर, इफ माई एटीट्यूड ऑन द पिच इज नॉट राइट, इफ आई एम गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड विद द थिंग्स नॉट गोइंग माई वे, and I'll get frustrated, I'll get angry, I'll try to play individually, I'll try to do the things अपने हिसाब से. I won't link up the play, I won't play along with my teammates, or else मैं force करने लग जाऊंगा चीज़ों को, and that's where the problem will arrive, and that's what happened. यूनाइटेड ऑब्वियसली खेल ही नहीं पाए, तो तुम क्या जज करोगे? मैकटोमिने ने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में बोला कि दे वर गिविंग अवे बॉल्स चीपली. आई डोंट नॉट थिंक सो कि दे वर गिविंग अवे बॉल्स बिकॉज दे डिडंट हैव द बॉल्स. ऑलराइट, मैग्वायर का एक इंसिडेंट है यहाँ पे, आप तुम देख सकते हो, क्लियर कर सकता था मग्गू बिकॉज जो सेव आया डेहिया का वो मग्गू के पैरों पे आया. सो रादर देन पुटिंग द बॉल इन फॉर कॉर्नर, मग्गू जस्ट लेट इट रन इनसाइड हिज बिटवीन हिज फुट एंड वहां से फिर गोल पड़ा. आई थिंक दैट वाज द सेकंड गोल जो केविन डी ब्रुयने ने स्कोर किया था. तो इजीली 5 से 6 से 7 प्लेयर्स हैं एट मैनचेस्टर यूनाइटेड हु डू नॉट डिजर्व टू प्ले इन दिस टीम. easily you can go on changing managers after managers, आप किसी को भी ला लो, but when this set of this bunch of players are there playing in your team, you are going nowhere from this. Nah, you are not progressing the right way. So यार मैं तो frustrated हूँ obviously. I can only imagine कि United fans कितने ज़्यादा frustrated होंगे after this, because यार you know कि गेम में जाने से पहले यार nobody thought कि यूनाइटेड विल विन दिस. मैक्सिमम वी वर होपिंग कि यार एक ड्रॉ हो सकता है अगर यूनाइटेड अपना गेम खेले, बट देन पता है क्या सीन होता है? यूनाइटेड क्यों अच्छा खेल रही थी फर्स्ट हाफ में? दे वर रनिंग मोर, दे वर मेकिंग लाइफ डिफिकल्ट फॉर मैनचेस्टर सिटी, एंड उसकी वजह से ना दे वर एक्सपेंडिंग देयर एनर्जीज.
भागना, चेस करना, बिकॉज सिटी आपको भगाएगी. सिटी प्लेज द बेस्ट फुटबॉल इन वर्ल्ड फुटबॉल, तो वो आपको भगाएगी, आपको रन कराएगी. एंड यूनाइटेड दे वर मैचिंग द इंटेंसिटी बिकॉज दे वर रनिंग, दे वर पुटिंग इन द प्रेसिंग, एंड बिकॉज सेकेंड हाफ में दे गॉट टायर्ड और एल सिटी गॉट टू द नेक्स्ट लेवल. एंड वही सिटी ने कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किए. सरप्राइजिंग बात पता है क्या, सिटी डिड विद द सेम प्लेयर्स दे वर हैविंग इन द फर्स्ट हाफ, एंड टुवर्ड्स द वेरी एंड 80 मिनट पे उन्होंने केडीबी को सब्स्टिट्यूट किया बिकॉज दे डिडंट नीड टू सब्स्टिट्यूट एनीबॉडी. दे वर बॉलिंग, दे वर हैविंग फन. एक ट्रेनिंग रूटीन था ये मैच फॉर मैनचेस्टर सिटी. एंड यूनाइटेड ने क्या किया पता है, यूनाइटेड ने दो चेंजेस किए. लेट मी शो यू कौन से चेंजेस थे. ओके, जैसे लिंगार्ड को लाते हैं 64 मिनट पे, मार्कस रैशफोर्ड को लाते हैं वो 64 मिनट पे पॉल पॉगबा की जगह पे. लिंगार्ड कम्स इन, हैज two touches in 26 minutes of the game. Rashford comes in and has 10 touches after coming on. So what was the impact of this substitution that Rangnick did? क्या करना चाह रहा था Rangnick after the substitution? What did he expect? Because आपके पास वो attacking threat तो है नहीं, और भाई City without making a single change showed कि आप given the set of players you can improve the game. And that's why Pep Guardiola is one of the best managers to ever grace football. We have to accept that. 3 Premier Leagues in 4 years and now again on a route to win another one. इमेंस है भाई ये. यूनाइटेड इसके बाद खेलेगी स्पर्स के अगेंस्ट एंड देन एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट. राल्फ रागनिक कहता है कि इस मैच को हमें जल्दी से जल्दी भूलना होगा बिकॉज हमें फोकस करना है. 2 अगले होम मैचेस हैं विच आर मस्ट टू विन. एंड भाई मुझे लगता है ना जिस हिसाब से रागनिक बात कर रहा था वो टॉप 4 के बारे में नहीं सोच रहा है बिकॉज ही येस ऑब्वियसली इज थिंकिंग अबाउट विनिंग द गेम्स, बट आई बिलीव कि रागनिक को सर्टेन अब हो चुका है कि टॉप 4 जा रही है हाथ से. बट टॉप 4 किसके हाथ से नहीं जा रही है और किसने बहुत ही बेहतरीन खेला कल, that is Barcelona. Yes, into the top third position पे हम आ चुके हैं. ऑब्वियसली आप देख सकते हो पिछले 4 मैचेस में 4 विंस रही है हमारी. हम ला लीगा में 11 मैचेस से अनबीटन हैं. आई वाज सेइंग कि एल्चे वोंट बी दैट इजी टीम टू बीट बिकॉज एल्चे क्या करती है, वो सिट बैक कर लेती है एंड यू नो दे डिफेंड वेरी डिसिप्लिन वे, बहुत नैरो, बहुत ही कॉम्पैक्ट. एंड ऐसा नहीं कि वो लो ब्लॉक या कुछ बना रहे थे, दे वर वेरी टैक्टिकली डिसिप्लिन बिकॉज मैन मार्किंग यहाँ पे लगा रखी थी एल्चे के प्लेयर्स ने. एंड बार्सिलोना को बहुत ही ज़्यादा ट्रबल हो रहा था टू फाइंड any pass, string anything around them. Lineup तुम देख सकते हो, this is the lineup that they went into. Dembele, Gavi started, Pedri, De Jong and Busquets also playing, और Jordi Alba, Danny, PK and Araujo and Ter Stegen in goal. तो ये था बेसिकली आपका सेटअप फॉर द गेम. बट जैसे कि मैंने बताया कि मैन ऑन मैन मार्किंग थी क्योंकि गावी वॉज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, उबा वॉज देयर इन द सेंट्रल रोड. उबा को बहुत अच्छे तरीके से न्यूट्रलाइज किया था इन दोनों डिफेंडर्स ने. एंड डेम्बेले वॉज ओवर हियर मेकिंग दैट पिच वाइड ऑन द राइट हैंड साइड. एंड जब भी आप देख रहे थे पेड्री वॉज गेटिंग ऑन द बॉल, एक ना एक प्लेयर इसके ऊपर था. जॉर्डी अल्बा को वो एक ना एक प्लेयर कवर किया था, गावी को एक प्लेयर कवर किया हुआ था. इवन यू गेट टू सी कि डियोंग पे एक मैन था. बस द फ्री गाइज वो बुस्केट्स कभी कभार एंड डानी ऑन द फार राइट एंड पीके एंड अरोहो. तो एक मैन ऑन मैन मार्किंग सिस्टम यहाँ पे लगा रखी थी अपोजिशन ने. एंड जिसकी वजह से बार्सिलोना को जब भी बॉल रिसीव हो रही थी दे हैड वेरी मच डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू विद द बॉल. एंड एक और चीज़ है जो कि मैच में हो रहा था फर्स्ट हाफ में जिसकी वजह से मुझे लगा कि बार्सा weren't playing that good although they created a lot of chances. even अगर आप फर्स्ट हाफ में देखो they created like what 3 clear cut chances, could have scored the goals. De Jong got into 1v1 situations and वहाँ पे फिनिश नहीं कर पाया De Jong. अदरवाइज अगर वो फिनिश कर दिया होता तो that would have been a goal. बट एडगर के लिए यहाँ एडगर बादिया द गोलकीपर, फॉर मी ही वॉज द मैन ऑफ द मैच बिकॉज ही केप्ट एल्चे इन द गेम थ्रू आउट द 90 मिनट्स. ऑब्वियसली ये स्कोर लाइन अदरवाइज बताती है बट इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द गोलकीपर ऑफ एल्चे जिसकी वजह से दे स्टिल वर इन द गेम. अब सीन क्या हो रहा था कि बार्सिलोना को प्रोग्रेस करने में डिफिकल्टी क्यों हो रही थी बिकॉज आई थॉट कि उनका जो मिडफील्ड है गावी एंड पेड्री दे वर लिंकिंग अप विद द अटैकिंग लाइन वे टू मच. And they were getting outnumbered in the midfield because even with De Jong he was trying to be around the defense line. With Pedri as well he was over there. Gavi also nearing the shoulder of the right back. Dembele right पे था ही था. तो तुम देख सकते हो एक तरह से मिड में हम यहाँ पे outnumbered हो रहे थे and we weren't able to progress the ball better and chance creation नहीं हो रहा था. and ये बात मैं कह रहा था कि सेकेंड हाफ में फरान तोरेस को आना चाहिए. सेकेंड हाफ जैसे होता है फरान तोरेस कम्स इन एंड मैच बदल जाता है बिकॉज येस यू गॉट टू सी निको गोंजालेस कम इन लेटर पार्ट ऑफ द गेम में फ्रेंकी की जगह पे एंड फरान वॉज ओवर देयर क्रिएटिंग द चांसेस. फरान की ऑफकोर्स एबिलिटी टू फिनिश अच्छी है. आई नो कि दिस गाय इज अ वेरी क्लिनिकल फिनिशर बट ही इज नॉट डूइंग दैट लेटली. बट क्या हम डिसअपॉइंटेड हैं इस हिसाब से? अगर मैच 1-1 ड्रॉ हो जाता या 0-1 लॉस होती हमें तो वी वुड हैव बीन फ्रस्ट्रेटेड कि यार फरहान ने फिर से मिस किया. बट वेरी वेरी इजली अगेन येस्टरडे ही कुड हैव हैड हिज हैट्रिक
हैट्रिक हो जाती फरहान तोरेस की। बट देन अगेन यू लुक एट द इंटेलिजेंस ऑफ द प्लेयर्स, जावी ने बात भी बोली है एंड मैं भी ये बात आप लोगों को बता रहा हूँ कि द इंटेलिजेंस ऑफ दिस प्लेयर टू एक्सप्लॉइट द स्पेस इन फ्रंट ऑफ हिम, बिकॉज ही इज वेरी गुड इन क्लोज कंट्रोल व्हेन ही इज रिगलिंग हिज वे अराउंड, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप हिम। आपने इसका नीट फुटवर्क एंड टच एंड कंट्रोल देखा, सो दैट्स व्हाट फरहान टोरेस एड्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उसकी अवेलेबिलिटी एंड अवेयरनेस टू अराइव इन द बॉक्स मेकिंग सम टाइम्ड रन्स, इट्स एब्सोल्युटली इमेंस। एंड yes obviously Farhan missed another 2 sitters yesterday but he scored the goal जो कि इक्वलाइजर किया। एंड ऑब्वियसली जिसने मैच देखा अंडरस्टूड कि फरहान वाज अ गेम चेंजर, डेफिनेटली दिस गाय चेंज द गेम। मेम्फिस डिपाई कम्स इन, वो पेनल्टी मिली, पेनल्टी थोड़ी सी आर्ग्यूएबल थी वहाँ पे क्योंकि डिफेंडर का हैंड लगा था, एक एल्बो फ्लिक था, रेफरी ने एक बार देखा एंड उसने पेनल्टी दे दी। ऑब्वियसली यहाँ पे रेफरिंग मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी लास्ट के मैच में। आपको पता है कि हर्नांडेज हरामखोर है ऑब्वियसली, तो कभी ना कभी कोई ना कोई इंसिडेंट हो जाता है जिसकी वजह से ही फ्रस्ट्रेट्स द बार्सा फैंस, बट देन अगेन ही गिव दैट पेनल्टी जो कि सही डिसीजन था। जॉर्डी अल्बा के को भी एक पेनल्टी डिसीजन में पिनलाइज किया गया, बट देन उसका हाथ वाज अराउंड हिज बॉडी एंड हिज फेस वाज टर्न्ड अवे और कोई अननेचुरल पोजीशन में हैंड था नहीं, तो वो पेनल्टी दी नहीं गई। सो भाई लोग, आई थिंक कि बार्सिलोना इज फाइनली पिकिंग अप। फाइनली हमारा टाइम आ रहा है दैट वी कैन स्टेप ऑन एंड से वी आर रेडी फॉर द चैलेंजेस इन आगे आने वाले मैचेस। अब गैलाटासराय के अगेंस्ट है, सो वी विल हैव टू वेट एंड सी कि क्या होता है। But on the other hand, Atletico Madrid continue to fight their own battles and यहाँ पे they defeat Real Betis, which is kind of a good result for them. Not so good for Barca because Atletico Madrid are in that 4th position आ चुके हैं, directly Betis को pull down कर दिया उन्होंने। It was a clinical performance for them. Joao Felix has finally arrived and यहाँ पे Simeone कहते हैं कि Joao Felix just needed time and probably 3 साल उसको लगे यहाँ पे to hit the ground running, but he has done that. साथ ही साथ आप आर्सेनल को देख सकते हो, they defeated Watford। भाई क्या गेम था, आरसी वेंगर वुड बी प्राउड ऑफ दिस परफॉर्मेंस यार, क्योंकि आर्सेनल की जो टीम है अंडर 21 ये जो प्लेयर्स है, बुकायो साका, गैब्रियल मार्टिनेली, मार्टिन ओडेगार्ड, दे हैव स्कोर्ड सो मेनी गोल्स यार इस सीजन। दे हैव बीन वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स अराउंड इन दैट एज ग्रुप, कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते रह रहे हैं ये पूरे सीजन। एंड भाई कल का गेम वॉज वेरी गुड, ऑल्दो दे कंसीडर्ड 2 goals बट देन दे वर एबल टू स्कोर 3 एंड दे वर एबल टू प्ले देयर ओन फुटबॉल। दैट्स द बेस्ट थिंग यार, एंड आर्टेटा बॉल इज फाइनली क्लिकिंग। साथ ही साथ यहाँ पे Juventus won 1-0 against Spezia and Milan ने यार नापोली को हराया। It was a good game with very less possession but Oliver Giroud stepped on and he had a terrific impact। आप यहाँ पे लाइनअप देख सकते हो मिलान एंड नापोली का। लोरेंजो इंसिग्ने, ज़िलिंस्की, पोलिटानो, सिमियन खेल रहे थे, रफाल लियाओ, जूनियर मेसिया, सैंड्रो टोनाली, केसी एंड बेनासर वो थे। तो एक अच्छा गेम था यहाँ पे। एंड ये भाई टेबल में आप लोगों को भी दिखाता हूँ पता चलेगा। सबसे पहले चलो ठीक है हम सीरिया आ का टेबल ही देख लेते हैं। लुक एट दैट भाई, मिलान टॉप पे आ चुकी है। येस ऑब्वियसली दे हैव प्लेड अ गेम मोर दैन इंटर, बट इंटर इफ दे विन देयर गेम तो वो टॉप जा सकते हैं, बट अभी के लिए आई एम वेरी हैप्पी कि मिलान इज टॉप ऑफ द टेबल। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो मैनचेस्टर सिटी स्टेट टॉप playing a game more। लिवरपूल के पास एक गेम इन हैंड है, they can cut the point gap to just 3 points, but we will wait and see what will happen। Chelsea has 2 games in hand and Arsenal के पास 3 मैचेस इन हैंड है and they are looking very very good। तो ला लीगा टेबल भाई ये देखो, ये है सुकून भाई। रियल मैड्रिड टॉप, सेविया सेकंड, बार्सिलोना स्लोली कमिंग। एंड अगर बार्सा अपना रिमेनिंग गेम इन हैंड जीत जाए तो दे विल बी ऑन 51 पॉइंट्स, जस्ट 4 पॉइंट्स ऑफ द सेकंड स्पॉट। एथलेटिको मैड्रिड भी धीरे धीरे खसक रही है टॉप 4 में। तो भाई लोग दिस वॉज द होल रैप अप ऑफ द गेम्स दैट हैपेंड। आपको वीडियो कैसा लगा डू लेट मी नो, एंड आप क्या सोचते हो इन सारे मैचेस के बारे में। बाकी मैचेस के बारे में ज़्यादा डिटेल में बात मैं नहीं कर पाया ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट, बट मैन यूनाइटेड, सिटी, बार्सा के बारे में व्हाट डू यू गाइज थिंक? यू let me know everything, what happened, what are your opinions about the game that happened yesterday. That's all for me. I'll see you guys very soon. Until then, as always, Vizcaya Barca and peace out. बार्सा की जर्सी नहीं मुझे पता है वहाँ रखी है, बट कोई बात नहीं, माइंड मत करना। Vizcaya Barca always will be there, but peace out.